So we are going to discuss comedy. So first of all, comedies are amusing and entertaining works of writing that are written for the purpose of evoking positive reaction from the audience. Yes, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि आपके सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द में बहुत सारी कॉमेडीज़ पाई जाती हैं, बट वी हैव टू डिस्कस पार्टिकुलरली कॉमेडीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर. And now if you have to see that he is saying that the comedy is the purpose of evoking positive reactions. That is the point. Positive reactions from the audience. Yes. आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आप किसी को तंग करते हैं, आप जुमले कसते हैं, तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे वो पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो आपके जहन में जितनी भी कॉमेडीज़ होती हैं, जब आप किसी को तंग करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता. So that is the difference between a general comedy and the comedies are in English literature. Specifically कि हम जब literature की बात करते हैं तो literature के बारे में कहा जाता है कि literature तो ज़िंदगियाँ बदलता है. Literature refines the life, literature reforms the life. So same is the case with the comedy कि comedy के जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर आप किस तरह दूसरों के एटीट्यूड को पॉजिटिव लेते हैं और अपने रिएक्शन को पॉजिटिव रखते हैं. दैट इज़ द कॉमेडी. गॉट इट? ओके. Initially, comedies refer to specifically plays that were amusing or entertaining. However, today the term comedy more broadly encompasses and types of writing that was composed for these purposes. Yes, बाज़ औक़ात आपके यहाँ कॉमेडीज़ को मुख्तलिफ़ शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन लिटरेचर के अंदर कॉमेडीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के थिएटर्स की शक्ल में, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामास की शक्ल में, मुख्तलिफ़ किस्म के पोइट्री की शक्ल में इन्हांस करके उनको पुट करके अपने ऑडियंस की तरफ भेजा जाता है. आप अगर कॉमेडी शोज़ देखें, इंडिया के शोज़ देखें, अपने पाकिस्तान के शोज़ देखें, तो आपको कॉमेडी किसी और टाइप की नज़र आएगी. बट इन द इंग्लिश लिटरेचर कॉमेडी इज़ समथिंग else. So a modern example of a comedy would be the popular television series, as nowadays you are going to see, for example, the Kapil Sharma show, like that one, or the Pakistani shows are there. So this type of comedy are the purpose to entertaining the audience with clever, dry humor. Basically the thing is that as earlier I have discussed that you have to entertain someone, but the positive reaction should be there. That is the comedy. अगर आप किसी को तंग करते हैं, आप किसी को टीज करते हैं और आप उनकी तरफ से जो रिएक्शन नेगेटिव आता है, that doesn't deal with the comedy. So now we are going to discuss the types of comedy. There are different categories in which comedies are organized under depending on their characteristic. It is important to remember that while today we see any literary works that is amusing as a comedy, the term comedy is more specifically used to identify dramatic works that are written for these purposes. So first of all, the type is there romantic comedy. और जितनी भी हम कॉमेडी के टाइप्स पढ़ेंगे उनके पहले ही लफ्ज़ से, उनके पहले ही वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की कॉमेडी है. सो रोमांटिक कॉमेडी, ऑब्वियसली यू ऑल नोज, a romantic comedy involves a love between people that results in a happy ending. Yes, जब आपकी कॉमेडी के अंदर किसी किस्म का लव का थीम आ जाए, रोमांटिक थीम वहाँ पे आ जाए, and the thing is that you are going to end, you are going for the happy ending. That is romantic comedy. While they may still endure struggles, the couple ultimately achieves a position. For example, a conclusion is there. मुख्तलिफ़ किस्म की आप मूवीज़ को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कॉमेडी जिनके अंदर मज़ा होता है, लेकिन रोमांटिसिज्म इज़ आल्सो देयर. आप लिटरेचर में ढेरों मिसालें हैं. और इसी की तरह जैसा कि उसने एक मिसाल दी है, कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी वुड बी द मूवी स्वीट होम Alabama. That is the movie in English literature. So इस तरह के जो है वो कहता है कि जब आपकी कॉमेडी के अंदर रोमांटिक का रोल आ जाए, थोड़ा सा रोमांटिसिज्म का आपके वहाँ पे कोई झलक नज़र आ जाए, या
जितने भी वहाँ पे टॉपिक्स चल रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स चल रहे हैं, बेसिकली मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमेडी जो है वो बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मुख्तलिफ सीरीज़ में प्रेजेंट की जाती है, या ड्रामा की शक्ल में, प्लेस की शक्ल में, नावल की शक्ल में, मुख्तलिफ़ किस्म की पोइट्री की शक्ल में। तो वो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि उनको प्रेजेंट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैरेक्टर्स की ज़रूरत है। और जो हम रोमांटिक कॉमेडी की बात कर रहे हैं, ये भी उन्हीं कैरेक्टर्स के दरमियान होगी, जो आपका हीरो होगा या आपका जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगा उसके दरमियान, उन दोनों के दरमियान। एंड द कॉमेडी इज़ गोइंग फॉर द सेक ऑफ हैप्पी एंडिंग। यस प्लीज़। यस ऑब्वियस। बेसिकली देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आपके यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कॉमेडी, या आप जब कॉमेडी के लफ्ज़ को सुनते हैं तो आप सिर्फ यही समझते हैं कि हंसी मजाक, बट ऑन द अदर हैंड लिटरेचर इसके बारे में कुछ और कहता है, जैसे कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सो द नंबर सेकंड इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। दिस टाइप ऑफ कॉमेडी इज़ स्टेरिकल इन नेचर एंड मेक्स फन ऑफ sophisticated society. Obviously you have, I think so, you have done with the comedy of manners in 3rd semester in history of English literature. बेसिकली मॉडर्न जो है उसके अंदर पाई जाती है कॉमेडी ऑफ मैनर, और बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड और आयरॉनिकल और स्टेरिकल कॉमेडी है, जिसके थ्रू इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर मेरा ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बेसिकली कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है। आई नो आपका 3rd सेमेस्टर जो है वो कोविड की नज़र हुआ, तो आपने इतना अच्छे से उसको नहीं देखा होगा, लेकिन अब आपके पास टाइम है। यू कैन सी before going with the comedy of manners, you have to work on what is comedy of manner. We'll discuss inshallah later on. So यहाँ पे उसने example दिया, Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest is an example of play that would be categorized as comedy of manners. ये दो किस्म की कॉमेडीज़ हमने डिस्कस की हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स बेसिकली इन द अदर टर्म्स आप कहें तो थोड़ी सी वाहियात कॉमेडी है, वल्गर किस्म की कॉमेडी है जो इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल की जाती है। सेंटिमेंटल कॉमेडी, दिस इज़ द थर्ड टाइप। सेंटिमेंटल कॉमेडी इन्वॉल्व्स कैरेक्टर्स दैट डिस्पाइट बीइंग क्लोजली टेम्प्ट टू बैड और evil eventually triumph over these forces and have a happy ending. Unlike the comedy of manners, these characters represent the everyday middle class versus the upper class. Yes, सेंटिमेंटल बेसिकली हम कहते हैं कि बहुत सारी जज्बाती किस्म की कॉमेडी होती है, उसके अंदर इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये जो कॉमेडी यूज़ की जाती है बेसिकली अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान का जो डिफरेंस है उसके ऊपर बात की जाती है ज़्यादातर, कि उनकी सफरिंग क्या है और उनकी सफरिंग क्या है। मीन्स अगर अपर क्लास कहाँ पे खड़ा है तो उनके रोने क्या हैं और लोअर क्लास के रोने क्या हैं, और इसके अंदर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात, एहसासात। एक बंदा जो गरीब के घर में पैदा होता है और वो आते जाते अमीर के बेटे को देखता है कि वो जनाब नया बैग, नए कपड़े डेली बेस पे आ जा रहा है, ऑन द अदर हैंड उसके पास स्कूल जाने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। सो दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अपर क्लास एंड लोअर क्लास की कॉमेडी का डिफरेंस है, कि वो देखते ही देखते उसके अंदर ये फीलिंग्स इन्हांस होती हैं, वो उसकी फीलिंग्स जागती हैं कि काश मैं भी ऐसे ही किसी घर में पैदा होता तो आज मेरे पास भी ये बस्ता होता, मेरे पास भी ये चीज़ें होती। दैट इज़ सेंटिमेंटल कॉमेडी। The next one is tragic comedy. Obviously the word is being mentioned tragic, हमने tragedy की भी बात की है। So a tragic comedy utilize elements from both comedies and both tragedies. These play often being tragical and happily. Obviously William Shakespeare, the Sublime is an example of tragic comedy. सो हमने जब अरिस्टोटल की कॉमेडी की बात की तो आपने देखा होगा हमने बात की थी सोफोक्लिस के किसकी बात की थी, एडिपस रेक्स की हमने बात की थी। दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ कॉमेडी, के जब आपकी कॉमेडी के अंदर अप्स एंड डाउन आ जाएं और ट्रेजिक फ्लॉ आ जाए, जब आपका ट्रेजेडी के साथ आप डील करते हुए कॉमेडी की तरफ जाएं तो तब आप क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। दैट्स इट।